بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک بے وقوف آدمی ہر روز جس راستے سے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گزرتے، اس راستے پر جھاڑیاں پھینک کر چلا جاتا، اور جب سلطان محمود غزنوی اس راستے سے گزرتے تو جھاڑیاں پڑی ہوئی ہوتی۔ سلطان محمود غزنوی سپاہیوں کو حکم دیتے کہ جا کر اس کو پکڑ کر لاؤ۔ بعض اوقات وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا، اور اگر وہ کبھی پکڑا جاتا تو جب سلطان محمود غزنوی اس سے پوچھتا تو لوگ کہتے یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ بہت کم بولتا ہے، حضور اس کو آج تک بولتا ہوا کبھی نہیں دیکھا گیا، لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی بہت حیران و پریشان ہوتے، کیا وجہ یہ بے وقوف میرے راستے میں جھاڑیاں پھینک کر کیوں چلا جاتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اب ہر روز یہ بات سلطان محمود غزنوی کو پریشان کرنے لگی، کیونکہ سلطان محمود غزنوی یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ آخر وہ بے وقوف آدمی سلطان کے راستے میں جھاڑیاں کیوں پھینکتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس دماغ سے کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلطان کے راستے میں جھاڑیاں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی سمجھ گئے کہ یہ جھاڑیاں پھینکنا اس کی شرارت نہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے، لیکن شاید وہ وجہ بتا نہیں سکتا۔ سلطان محمود غزنوی بڑے حیران ہوتے، لیکن پھر بھی معلوم نہ کر سکے کہ آخر وہ بے وقوف آدمی سلطان کے راستے میں جھاڑیاں کیوں پھینک کر چلا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی بہت پریشان ہو گئے تو ایک دن سپاہی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطان معظم، کل وہ بے وقوف آدمی جب آپ کے راستے میں جھاڑیاں پھینک کر جائے گا تو ہم اس کو پکڑ کر قید کے اندر ڈال دیں گے، نہ ہی وہ آزاد گھومے گا اور نہ ہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی نے کہا، نہیں، کل جب وہ آدمی میرے راستے میں جھاڑیاں پھینکے گا تو کوئی آدمی اس کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ سب سپاہی حیران ہو گئے، لیکن جیسے ہی سلطان محمود غزنوی اگلے دن اسی راستے سے اسی جگہ سے گزرے تو وہ جھاڑیاں پھینک کر بھاگ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے گھوڑے کو وہیں روکا اور پیدل چلتے ہوئے اس نوجوان کا تعاقب کرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ آدمی جھاڑیوں سے گزرا، اور جھاڑیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی غار کے اندر داخل ہوا۔ سلطان حیران کہ آخر یہ نوجوان اندھیری غار کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن جیسے سلطان محمود غزنوی نے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے، اور سلطان سر پیٹ کر کہنے لگا، کیوں میں پہلے اس دن آدمی کی جھاڑیاں پھینکنے کی وجہ کو سمجھ نہیں پایا؟ کیونکہ اس غار کے اندر دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ عراق کے شہر امین کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار بہت طاقتور اور جنگجو انسان تھا۔ بڑے بڑے سردار اس کے غصے کے آگے سے ڈرتے تھے، اور بازار کے اندر چاند سکوں پر ملازمت کرنے والا نوجوان چند ہی سالوں کے اندر اتنے بڑے قبیلے کا سردار بن گیا، اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اتنا بہادر بنا دیا تھا کہ اس قبیلے کے چند لوگ ڈاکوؤں کے بڑے بڑے لشکروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ اسی شہر کے شفا خانے کے اندر ایک حکیم رہتا تھا۔ وہ حکیم بڑا ہی عقل مند اور تجربے کار انسان تھا۔ وہ حکیم سارے شہر والوں کا علاج کرتا، اور قبیلے کا سردار اس کو ماہانہ تنخواہ دیتا، حتیٰ کہ قبیلے کے سردار نے اسے اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر قبیلے کا کوئی بھی آدمی تمہیں دوائی کے معاوضے دے تو تم لینے سے انکار نہیں کرنا، لیکن کسی سے زبردستی نہ لینا۔ لیکن اس کی ایمانداری اتنی تھی کہ وہ کسی بھی شہر کے آدمی سے ایک سکہ بھی نہیں لیتا تھا، چاہے تکلیف کتنی ہی بڑی نہ ہو، بس قبیلے کے سردار سے تنخواہ لیتا اور اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا تھا۔ اس حکیم کا ایک بیٹا جس کی عمر تقریباً اس وقت 25 سال تھی، ایک مکتب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس حکیم کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ اپنے بچے کو اتنے بڑے مکتب میں تعلیم حاصل کروا سکے، بلکہ یہ تو رحم دلی اس سردار کی تھی کہ جس نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک غریب حکیم کے بیٹے کو بھی اپنے بچوں کے برابر مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور اس کی پڑھائی کا جتنا بھی خرچہ آتا تھا وہ سردار ادا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، جب اس کے بیٹے کی عمر 30 سال ہوئی تو وہ سردار کے بیٹوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ قبیلہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ وہ قبیلہ جو 70 خیموں پر مشتمل تھا اب وہ سینکڑوں خیموں پر پھیل چکا تھا۔ اس قبیلے کے ساتھ سردار نے چمڑے کا کارخانہ بھی بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ قبیلے کے سردار نے ڈاکوؤں سے ایک بار حملہ کر کے بازار چھین لیا تھا، اور وہ بازار بھی اب اس قبیلے کے سردار کے قبضے میں تھا۔ اب وہ قبیلہ بہت بڑی طاقت بن چکا تھا۔ ایک دن وہ حکیم جڑی بوٹیاں حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرتے کرتے پہاڑ کے اندر اتنا زیادہ آگے
चला गया कि उसके कदम डाकुओं के गिरोहों के ठिकाने पर जा पड़े। जब उन डाकुओं को खबर मिली कि हमारे ठिकाने को किसी आदमी ने देख लिया है तो उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। हकीम भी समझ गया कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे जिंदा कभी न छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने उनका खुफिया ठिकाना देख लिया है। हकीम ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो उनसे बचने में नाकाम रहा। चंद ही लम्हों के अंदर उन डाकुओं के गिरोहों ने उनको पकड़ लिया और उसको इतना ज्यादा जख्मी कर दिया कि वो कबीले के अंदर बड़ी ही मुश्किल से पहुंचा। वो शिफा खाने के अंदर खून में लथपथ पड़ा था। रात का वक्त था, सब लोग अपने अपने खेमों में आराम कर रहे थे। इतने में हकीम का बेटा किसी काम से जब वापस अपने घर आया तो देखा कि घर के अंदर उसका बाप नहीं था। जब वो शिफा खाने के अंदर गया तो जो उसने मंजर देखा उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप को खून में लथपथ देखा तो उसे एक जोरदार झटका लगा और वो वहीं गिर कर बेहोश हो गया। जब वापस होश में आया तो हकीम ने कबीले के सरदार को बताया, हुजूर, हकीम साहब का बेटा एक बहुत बड़े सदमे का शिकार हुआ और इस सदमे ने सीधा उसके दिमाग पर असर कर दिया। ये अपनी जिंदगी में कभी शायद बोल भी नहीं सकेगा, क्योंकि अब इसके अंदर बोलने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। ये खुद चाह कर भी नहीं बोलेगा और इसका दिमाग पहले की तरह नहीं रहेगा। ये सुनकर सरदार बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि एक तरफ उसने अपने वफादार हकीम को खो दिया तो दूसरी तरफ उस हकीम की आखिरी निशानी जो कि उसका बेटा था वो भी अब माजूर बन चुका था। सरदार बड़ा परेशान हुआ और हकीम साहब ने उसे बताया कि सरदार साहब, आपने इस नौजवान की खास हिफाजत करनी है, क्योंकि जब ये होश में आएगा तो इसका जहाँ दिल करेगा ये चला जाएगा। जो दिल करेगा वही करेगा, किसी की बात सुनेगा ना ही किसी की समझेगा। बस आपने अगर इसकी हिफाजत ना की तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। ये सुनकर सरदार ने हुक्म दिया कि इस नौजवान के घर के इर्द गिर्द चौकीदार तैनात कर दिए जाएं। वक्त गुजरने लगा। तकरीबन 2 साल तक तो कबीले के सरदार ने उसको घर के अंदर से निकलने पर पाबंदी लगाए रखी और साथ ही साथ में उसका इलाज भी चलता रहा। लेकिन शायद इसके दिमाग पर अपने बाप का इतना बड़ा सदमा हुआ कि कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। एक दिन सरदार किसी काम से बहर गया तो वापस आया तो चौकीदार ने बताया कि सरदार साहब, हकीम के बेटे ने अचानक हमारे चौकीदारों पर हमला किया और हमारे कुछ चौकीदारों को जख्मी करके भाग गया। ये खबर सुनते ही सरदार ने सिपाही दौड़ा दिए। खुद भी तलाश करता रहा, लेकिन हकीम का बेटा ना मिला। वक्त गुजरता रहा, 5 साल गुजर गए, लेकिन सरदार को हकीम का बेटा ना मिला। अब वो समझ गया कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहा होगा, लिहाजा अब उसको तलाश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वक्त गुजरता रहा, कोई नहीं जानता था कि उस हकीम का बेटा, जिसको सरदार मुर्दा समझ चुका है, वो मरा नहीं बल्कि एक अंधेरी गार के अंदर रहने वाली बूढ़ी औरत के पास रहता है। हुआ कुछ यूं था कि जब वो नौजवान कबीले से भागा तो वो दौड़ता दौड़ता पहाड़ में जा घुसा ताकि उसको सिपाही ना पकड़ लें। इसी पहाड़ के अंदर एक बुढ़िया अपने घर में जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उसने एक नौजवान को भागते हुए देखा तो पूछा, अरे बेटा, क्यों भाग रहे हो? जब उसने बुढ़िया के मुंह से बेटा जैसा अल्फाज सुना तो वो वहीं रुक गया और बुढ़िया की तरफ चला गया। बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्यों भाग रहे हो? वो नौजवान खामोश। बुढ़िया समझ गई कि ये माजूर आदमी है, लिहाजा बुढ़िया ने उसको इशारा दिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे कि इस पहाड़ के अंदर तुम्हें वहशी जानवर जिंदा नहीं छोड़ेंगे? वो नौजवान हकीम का बेटा उसके साथ चल पड़ा। अब वक्त गुजरता रहा, चंद साल गुजर गए और माजूर हकीम का बेटा बुढ़िया के साथ रह रहा था। सारे इलाके के लोग नहीं जानते थे कि बुढ़िया के पास रहने वाला नौजवान इस हकीम का बेटा है, क्योंकि उस बुढ़िया का घर कबीले से बहुत ज्यादा फासले पर था। लिहाजा गांव के लोग उसको बुढ़िया का बेटा समझते और उसे पागल समझते। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस पहाड़ के अंदर एक बुजुर्ग की हवेली थी और सुल्तान मुअज्जम हफ्ते के एक दिन जरूर उस हवेली में जाते और हाजिरी देते। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी शहर से पहाड़ के अंदर मौजूद हवेली की तरफ जा रहे थे, तो जब सुल्तान महमूद गजनवी रास्ते में थे तो सुल्तान का गुजर उसी कबीले के पास से हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा कि सुल्तान के रास्ते में झाड़ पड़े हुए थे और वो इतने बड़े तो ना थे कि जिससे कोई ज्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन हाँ, सुल्तान महमूद गजनवी के घोड़े गिर सकते थे। यह देखकर सुल्तान ने घोड़ों को रोका और देखा तो एक नौजवान भाग रहा था। सिपाही समझ गए कि इसी नौजवान ने ही झाड़ फेंके होंगे, लेकिन सिपाहियों के घोड़े गुजरने से पहले ही वो बहुत दूर जा चुका था। ये देखकर सुल्तान महमूद गजनवी सख्त गुस्से में
में आ गए और कहा, इसको तलाश करके कल मेरे सामने हाजिर किया जाए। चंद सिपाही उसकी तरफ रवाना हो गए, लेकिन उसको तलाश न कर सके। अब हफ्ते के अगले दिन सुल्तान महमूद गजनवी मामूल के मुताबिक हवेली की तरफ जा रहे थे, तो फिर से अचानक सुल्तान ने देखा कि उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते में झाड़ पड़े हुए थे। अब सुल्तान ने देखा कि वही नौजवान भाग रहा था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसको पकड़ कर लाओ। सिपाही दौड़ते गए और उसको पकड़ लिया और सुल्तान के पास लाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हालत बिल्कुल नहीं बताती थी कि वो कोई माजूर आदमी है, बल्कि वो तो एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने प्यार से और गुस्से से पूछा, लेकिन उसने कुछ न बताया। यह देखकर सुल्तान सख्त गुस्से में आ गए और तलवार निकाल ली। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ सुल्तान के पास आया और कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप उसे कुछ न कहें, ये पागल आदमी है, कोई नहीं जानता ये कहाँ रहता है, बस हम इसको कभी कभी देखते हैं। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इसने किसी के रास्ते में झाड़ियाँ नहीं फेंकी, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ये आपके रास्ते में ही क्यों फेंक कर चला जाता है। सुल्तान मुअज्जम, ये गूंगा है, बोल कुछ नहीं सकता। इर्द गिर्द के लोग बताते हैं कि इसको कभी किसी ने नहीं बोलते देखा, लिहाजा इसको डराने या धमकाने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ गए। तो इतने में अली बिन फजल ने कहा, हुजूर, आप एक पागल की वजह से इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? सुल्तान ने कहा कि ये मुझे नौजवान बहुत परेशान लगता है और बेशक ये मेरे रास्ते में झाड़ बिला वजह नहीं फेंकता, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। अली बिन फजल ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए, बस ये तो पागल आदमी है, इसका किया जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसको छोड़ दिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुजरने लगा, लेकिन हर हफ्ते जब भी सुल्तान महमूद गजनवी उस हवेली वाले रास्ते से गुजरते तो वो आदमी झाड़ियाँ फेंक कर चला जाता, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी उसको जाने देते, कभी कुछ ना कहते। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो कुछ नहीं बोलता था। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी परेशानी के आलम में बैठे थे। इतने में अली बिन फजल आपके पास आया और कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपकी परेशानी की वजह पूछ सकता हूँ? सुल्तान ने कहा, ए अली, तुम जानते हो कि मेरी परेशानी की वजह वो पागल आदमी है जो मेरे रास्ते में हमेशा झाड़ियाँ फेंक कर चला जाता है। ये सुनकर अली बिन फजल ने कहा, हुजूर, आखिर आप इस मामले में इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? मैंने आपको बताया कि वो पागल है। सुल्तान ने कहा, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ये सुनकर अली बिन फजल ने कहा, हुजूर, क्या वजह हो सकती है? सुल्तान ने कहा, अगर वो पागल होता तो इस जगह से कई मुसाफिर गुजरते हैं, बड़े बड़े लश्कर गुजरते हैं, उसने कभी किसी को एक कंकर भी नहीं मारा, कभी किसी को तकलीफ भी नहीं दी, तो वो मेरे रास्ते में ही झाड़ क्यों फेंकता है? ये सुनकर अली बिन फजल भी सोचने लग गया और कहा, हुजूर, फिर इस मामले का क्या हल किया जाए? तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कल जब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा और अगर इस बार भी उस नौजवान ने उस रास्ते से झाड़ फेंके तो मैं इसको पकड़ लूंगा और देखा जाएगा कि आखिर वो कहाँ रहता है और आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। अली बिन फजल खामोश हो गए। अगले दिन सुल्तान महमूद गजनवी सिकंदरिया की तरफ जा रहे थे। जब सुल्तान महमूद गजनवी उसी रास्ते पर पहुँचे तो सुल्तान ने देखा कि पहले की तरह वो नौजवान सुल्तान के रास्ते में झाड़ फेंक कर भाग रहा था। सिपाही उसकी तरफ लपकने लगे तो सुल्तान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। सुल्तान ने अपने घोड़े को रोक दिया और पैदल चलते चलते उसका ताकुब करने लगे। अब सिपाही सुल्तान के पीछे, सुल्तान आगे, और वो नौजवान सुल्तान के आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। उसको कुछ नहीं मालूम था कि सुल्तान मुहतरम उसका पीछा कर रहे हैं। वो दौड़ता दौड़ता एक घनी झाड़ियों के दरमियान में गुजरता हुआ एक अंधे गार के अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान हैरान हो गए कि आखिर ये नौजवान इस अंधे गार के अंदर क्या करने के लिए जा रहा है। सुल्तान फौरी देर के लिए रुक गए और सोचने लगे, कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं हो सकती कि दुश्मन ने इस गार के अंदर मेरे लिए एक घात लगाई हो और वो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी सोचने लगे, लेकिन फिर सुल्तान ने देखा कि गार के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही पांव के निशान थे। लिहाजा सुल्तान समझ गए कि इस गार के अंदर और कोई दाखिल नहीं हुआ, बस यही नौजवान आता जाता है। सुल्तान ने अपनी महारत से उसी वक्त पता लगा लिया कि ये कोई घात नहीं है, लेकिन जैसे सुल्तान ने अंदर कदम रखा तो
सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सुल्तान महमूद ने देखा कि इस गार के अंदर एक खस्ता हाल बिस्तर पर एक बुढ़िया पड़ी हुई थी। शायद ये वही बुढ़िया थी जो इस पागल को जंगल से पकड़ कर ले गई थी, लेकिन वो अब इतनी बीमार हो चुकी थी कि इसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इतने में सुल्तान महमूद के सिपाही और उस गार से थोड़ा सा फासले पर मौजूद रहने वाली आबादी के चंद लोग सुल्तान के सिपाहियों के साथ उस गार के दिहाने पर पहुँचे। जब उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा तो बताया, सुल्तान मुअज्जम, हमारी समझ आ गया कि ये पागल आपके रास्ते में झाड़ क्यों फेंका करता था, क्योंकि इसकी बूढ़ी माँ जब बीमार हुई तो उसकी इयादत करने वाला कोई नहीं था। वो बस बिस्तर मर्ग पर पहुंच गई और कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं था। बेशक ये पागल है, कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन ये अपनी माँ का दर्द जरूर समझ सकता था और ये इसी वजह से आपके रास्ते में झाड़ फेंका करता था, क्योंकि ये जानता था कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। कोई भी इसकी मदद ना करता, क्योंकि सब इसको पागल समझते हैं और यही वजह थी कि ये आपके रास्ते में झाड़ फेंकता ताकि आप इसका पीछा करते हुए इस गार तक पहुँचेंगे तो उसकी मदद करेंगे। सुल्तान ने उसी वक्त हुक्म दिया कि शाही हकीम के पास इस बूढ़ी औरत को उठा कर ले जाए। सिपाही ने उसी वक्त उठाया और शाही हकीम के पास ले गए। शाही हकीम ने उसका इलाज किया। बूढ़ी औरत चंद ही दिनों के अंदर बेहतर होने लगी। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने सुल्तान महमूद को उस पागल की मुकम्मल कहानी सुनाई और उसको बताया कि किस तरह ये कबीले के हकीम का बेटा है और किस तरह अपने बाप को खून में लथपथ देखकर ये पागल हो गया था और ये तकरीबन 5 सालों से मेरे पास रह रहा है। ये सुनकर सुल्तान महमूद ने शाही हकीम को कहा, तुम कुछ भी करो, इस नौजवान का इलाज शुरू कर दो। मैं इसको ठीक ठाक हालत में देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसको अपने गरीब बाप ने बड़ी ही मेहनत से पढ़ाया, लेकिन इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर ये अपनी जिंदगी में दोबारा वापस न लौट सका। शाही हकीम ने उसका इलाज शुरू कर दिया और बहुत सी कुतुब में मिलता है कि चंद ही दिनों के अंदर वही नौजवान फिर बहुत बड़ा काजी बन गया और बड़े बड़े मकतबों में पढ़ाने लगा और इसी वजह से वो अपनी अक्लमंदी की वजह से न सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ की उसने जान बचाई, बल्कि अपनी जिंदगी की तरफ फिर से वापस लौट आया।